यार ये फिर बंद हो गई है भाई। क्या चल रहा है तेरा यार? अगर सीधा जाना चाहो जहाँ रोक जाए बता देना चालान होगा। बट मेरे पास फिर रिसीट विसीट नहीं है ना चालान का। नंबर डालते ही आ जाएगा। अच्छा इसका फिर चालू हो गया यार। दिस इज इंदौर टू मुंबई लास्ट स्ट्रेच बैक होम। मैं हूँ एक प्राचीन श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर के सामने और ये देखो आई हैव लॉस्ट काउंट टू बी ऑनेस्ट। और मेरे को याद भी नहीं अभी कितनी बारी बंद हो चुकी है ये पूरे ट्रिप में। चल भाई मैं क्या ये मुंबई तक जाऊंगा क्या ऐसे रोलिंग डाउन हिल? क्या बकवास है। जो सर्विस सेंटर गया था व्हाई कांट यू जस्ट फकिंग फिगर इट आउट यार। इज देयर नो प्लेस टू माउंट द गोप्रो इन द नैनो? कुठे ठेवणार मी? वेयर डू आई माउंट दिस? यहाँ माउंट कर सकता हूँ? माउंट तो मैं कर लूँगा पर ये एसी और इंजन की आवाज़ से तो कुछ घंटा सुनाई देने वाला है। फिर थूका यार। Good morning YouTube, what is up? This is your captain speaking and welcome back to another flight बहुत दिनों के बाद। अभी अपन चलते चलते बात करेंगे and I will try my best that the camera does not fall over because if it falls over I can't help it. By the way ये हमारी टाटा नैनो है। This is our generational car। ये हमारे साथ सालों साल रही है। More than I think 10, 11, 12 years। पापा इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज कमेंट करके बता हाउ मेनी इयर्स बिकॉज जेन्युइनली मेरे को याद नहीं है। बट चेंबूर शिफ्ट होने बिफोर वी शिफ्टेड टू चेंबूर वी हैड द नैनो सो या इट्स बिन मोर देन अ डेकेड आराम से। अभी जेन्युइनली इफ यू आस्क मी आई डू नॉट रिमेंबर व्हेन आई लेफ्ट फॉर उत्तराखंड एंड व्हेन आई गॉट बैक। इतना मेरे को याद है कि 12 डेज का ट्रिप होने वाला था but it extended into 15 days for obvious reasons that we are going to talk about today. Thank you दादा गेट खोलने के लिए। First things first, the ride was smooth as a fuck while going. While coming back, that is when all the problems had started. So as the first few vlogs indicated, we went from Mumbai to Indore, Indore to Jaipur, Jaipur to Delhi. That is when the first breakdown happened. I was smack dab in the middle of Delhi traffic, but I think luckily मैं काफ़ी ऐसे पॉश एरिया में था जहाँ पे there were a lot of rich people, extremely rich people। पहली बार लाइफ में मैं किसी की अमीरी देख के इनसिक्योर हूँ और cars I have seen that day, बाप रे बाप। Anyway, so the first breakdown happened in Delhi. I was in the middle of Delhi traffic। बड़ा there was a 3-lane highway and I was in the last lane, the fastest lane, and it was chock-a-block jam and the bike just cut off. And that was the first vlog that you saw of the Himalayan breakdown. And भाई ये कोई मूतने की जगह है क्या? I was 3 kilometers away from my hotel when the first breakdown happened and luckily it started. I got to my hotel, rested for a day. Next day left for Uttarakhand, which was the Delhi to Uttarakhand through the gaos of UP wala vlog. Great ride. Got to Uttarakhand, spent a good 4 days over there, 4 days 5 nights, something like that. No problem, I was getting in Uttarakhand, no issues whatsoever. Bike was performing. So Himalayan was doing Himalayan things basically, and it was great. I was loving it. While coming back from Uttarakhand, that's when all the issues started. I entered UP and I was on my way to Agra. That was supposed to be my first halt. It was supposed to be in Agra. I was going to come back from Uttarakhand, Agra, Indore, Mumbai. But somewhere midway, I was outside on the outskirts of Meerut and एक छोटा सा कस्बा टाइप गांव टाइप कोई सिचुएशन था। इट कट ऑफ ओवर देयर एंड दिस टाइम व्हेन इट कट ऑफ इट वाज रिफ्यूजिंग टू स्टार्ट। आई ट्राइड एवरीथिंग। आई यार one thing that I really miss is my kickstart from my classic. I really wish these modern bikes had some sort of kickstart mechanism, whatever it is. धक्का मार के स्टार्ट करते भाई, वो धक्का मार, वो इतनी हाथी को कहाँ धक्का मारता फिरता मैं 40 डिग्री टेम्परेचर में पूरा गियर्स के साथ, लगेज के साथ। सो आई वेटेड फॉर सम टाइम, आई लेट द बाइक कूल डाउन। वंस इट कूल्ड डाउन इट स्टार्टेड लिटिल बिट, वाज अ स्पर्ट। अपना आग कैसा भुभकने से पहले
बुझने से पहले आग कैसे भुभकता है. There was a little spurt. It started for a while, but then after a few kilometers it cut off again. And this time when it cut off, I was smack dab in the middle of that kasbah in Meerut. और no help whatsoever. और दशहरा था वो दिन, जो मेरे को नहीं पता था. It was Dashera and there was a lot of processions going on, and थोड़ा सा situation had started getting a little out of control because बहुत भीड़ जमा होने लगी थी वहाँ पे. बच्चे आ रहे थे, बूढ़े आ रहे थे, जवान लोग आ रहे थे. बस जवान औरतें नहीं आ रहे थे, जवान आदमी लोग आ रहे थे खाली. जवान लौटने के साथ क्या करेगा मैं, तो जवान औरत आई तो मैं भी थोड़ा सा बात करके आई कैन यू नो, थोड़ा सा मेरा भी डिस्ट्रैक्शन हो जाता ना यार. बाय द वे मेरी नैनो में एक रिवर्स कैम है, ये देख मैं दिखाता हूँ. ओल्ड स्कूल रिवर्स कैम. गुड मॉर्निंग यूट्यूब. आज अपन चलते चलते गुड मॉर्निंग बोलेंगे. गुड मॉर्निंग यूट्यूब, व्हाट इज अप? दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग एंड वेलकम बैक टू ए न्यू फ्लाइट बट द सेम चढ़ान, एंड दिस टाइम विद बोथ माई पैनियर्स एंड माई हैवरसैक माउंटेड पीछे. चल डोरा, आज बंद नहीं होना. It is 7 o'clock in the morning. I have 7 hours and 48 minutes to ride. And उत्तराखंड, तू बहुत प्रिटी है रे. मैं आएगा तेरे पास वापस. थोड़ा सा वक्त दे दे मेरे को, तू बहुत दूर है मेरे घर से, ठीक है? थोड़ा सा ये बार बराबर प्लानिंग करके थोड़े से और दिनों के लिए आएगा मैं. अभी के लिए तेरे को गुड बाय. अभी मेरे को निकलना है आगरा, और आज पहली बार अपन जाएंगे यमुना एक्सप्रेसवे. अपना ख्याल रखना लैंड्सडाउन, अपने आप को बचा के रखना लैंड्सडाउन. लैंड्सडाउन कंपैरेटिवली बहुत वर्जिन हिल स्टेशन है. वर्जिन ही रहना भाई. आएगा मैं तेरे पास वापस. ये लास्ट शॉट है लैंड्सडाउन का, ये मेरे को लेना ही था. दिस इज माई मोस्ट फेवरेट टाइप ऑफ प्लेस. ओह माय गॉड, लुक एट दिस. सब जगह पाइन ट्रीज है. मैं बचपन से एक सप्ताह देखता था, मालूम है, कैसे हिल्स में, पहाड़ों में, बट नॉट एग्जैक्टली पहाड़ों. लाइक आई सेड, मैं आई एम मोर ऑफ अ कोस्टल बेबी. आई लाइक माई वाटर, बट ऐसे पाइन ट्रीज के बीच में एक घर होना मांगता है. किधर? तो हिल्स के बीच में. डोरा, सेक्सी तो है तू. तेरे को कितनी बार सेक्सी बोलूँगा भाई ये राइड में. तू बोर नहीं रहती मेरे से डोरा? मेरे साथ बोर नहीं होती तू? जिसको प्यार किया आज तक बोर हुआ है, तू नहीं होती? एक फोटो तो बनता है. ऐड अ रिमाइंडर टू माई सेल्फ कि नॉर्थ में किधर भी अगर पराठे मंगाए तो एक ही मंगाना, दो नहीं मंगाना. बहुत बड़े होते हैं. एक मैं पार्सल ले लिया हूँ. चलो, मन्नत पंजाबी ढाबा, थैंक यू फॉर द ग्रेट आलू प्याज पराठा. एक नंबर आलू प्याज पराठा, एक नंबर. बट बहुत मक्खन. मक्खन के बिना जीवन क्या है? क्या है जीवन मक्खन के बिना? अपने को अभी अगले 15 किलोमीटर में एक 4 लेन लगेगा. वो 4 लेन पकड़ के मेरे को एकदम सीधा जाना है. उसके बाद वो डायरेक्टली निकलेगा आई थिंक फरीदाबाद के आसपास, और वहाँ से अपने को लगेगा यमुना एक्सप्रेसवे ऑल द वे टू आगरा. 382 किलोमीटर्स, 6 hours and 32 minutes is left. It is 8:51 in the morning. और मीठी मीठी ठंड के बाद मीठी मीठी गर्मी शुरू ऑलरेडी हो चुकी है. पेट्रोल भरा हुआ अभी के बाद में भरा, अभी तो है बहुत अपने पास. बौना कुत्ता. What the fuck? मैं कभी भी डो ऑफ डॉगी देखा नहीं है. यूपी के छोटे छोटे गांव से निकल के अपन यूपी के बड़े बड़े हाईवे पर लग चुके हैं. दिस इज ए 4 लेन हाईवे. और मेरे को ज़्यादा पता तो नहीं है, बट मेरे ख्याल से यही हाईवे है जो अपने को यमुना तक लेके जाए. यमुना एक्सप्रेसवे. सो एक्साइटेड टू राइड द यमुना एक्सप्रेसवे. अपन आते वक्त भी इधर से ही आए थे, बट आते वक्त मैं पूरा यूपी का इंटीरियर घूम के आया हूँ मेरठ के बाजू में से. तो ये वाला जो हाईवे था मेरे को कम हार्डली कुछ 10-15 मिनट के लिए मिला था. आज होपफुली अपने को एंड टू एंड मिलेगा. एंड टू एंड मतलब आई डिडंट इवन स्टार्ट फ्रॉम द एंड, मैं बीच में से ही पकड़ा ही है. बट आई होप अपने को काफ़ी देर तक ये मिलेगा, क्योंकि मेरे को वापस इंटीरियर में नहीं घुसना है. ये वैसे भी मेरे को बता तो रहा है 9.5 किलोमीटर के बाद एक राइट लेने को, बट आई डोंट थिंक मैं वो लूँगा. मैं सीधे से निकल जाऊँगा. बस हो गया मेरे को भाई. इंटीरियर इंडिया नहीं घूमना है आज, नहीं घूमना है. मैं थक गया हूँ, 12 दिन हो चुके राइड करके, थक गया हूँ मैं. बस हो गया. मेरे को डायरेक्ट हाईवे पकड़ा और डायरेक्ट मेरे को घर लेके जा. मेरे को घर जाने का बहुत एक्साइटेड हूँ मैं. घर जाना है मेरे को. मेरी माँ का हाथ का चाय पीना है मेरे को. प्लीज़ घर लेके जा. हाईवे टू हाईवे प्लीज़. यार ये फिर बंद हो गई है भाई. What the fuck bro? तेरे को हो क्या गया है भाई? तू ऐसे करेगी मेरे साथ अभी? हैं? अभी तक तो ठीक थी.
यहाँ से कहाँ मैकेनिक ढूंढूं मैं अभी? क्यों कर रही है तू? क्यों यार मेरे को समझ नहीं आ रहा हो क्या। रॉयल एनफील्ड में 3 बार मैं कंप्लेन कर चुका हूँ इस चीज़ के बारे में, बट देयर इज फकिंग नो सोल्यूशन फ्रॉम रॉयल एनफील्ड व्हाटसोएवर। एनफील्ड का अच्छा है मालूम है, इवन फॉर देयर लॉयल कस्टमर्स दे डोंट गिव अ। अपन सीधा यहाँ नीचे गए थे, बट नीचे बहुत पानी भरा हुआ है टनल में, तो अपन अभी ऊपर से जाएंगे। अपेरेंटली सेम जगह जाते हैं, लेट्स होप। अगर सीधा जाना चाहो जहाँ रोक जाए पता नहीं चालान होगा। बट मेरे पास फिर रिसीट नहीं है ना चालान का। नंबर डालते ही आ जाएगा। आप अगर निकल तो जाओगे, लेकिन आप नोएडा में या गाजियाबाद में जहाँ उतरोगे नहीं, हाँ वहाँ पे वो पुलिस खड़ी रहती है। हाँ हाँ बेटर यही है आपका। हाँ, मैं इधर से निकल जाऊँगा फिर। ठीक है, धन्यवाद सर जी, थैंक यू। यार आजकल पुलिस भी काफ़ी स्मार्ट हो गई है। उसने ऑलरेडी मेरा कैमरा देख लिया था, तो मेरे को बोला हेलमेट निकाल के साइड में चलो। अपेरेंटली इधर का फाइन 20,500 है बाइक के लिए, अगर बाइक से आया तो। फिर अपन ने थोड़ा बात करके निपटा दिया। 20,500 का मैंने 2500 में निपटा दिया। डैम, ये मेरे को याद रखना पड़ेगा अगली बार। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पे 2 व्हीलर्स नॉट अलाउड, ओनली अलाउड ऑन डायरेक्ट यमुना एक्सप्रेस वे। अभी अपने को खाली यहाँ से सीधा जाना है, विच विल बाईपास द एक्सप्रेस वे। सर जी ने बोला ज़्यादा दूर नहीं है, पर इधर से ही जाओ। एक्चुअली वो मेरे को ऑप्शन दे रहे थे कि आप पकड़ लो एक्सप्रेस वे, आगे की तरफ पकड़ा तो बोल देना कि मैंने फ़ाइन भर दिया है। मैंने बोला दादा लेकिन मेरे पास ये पावती वावती नहीं है रिसीट का। तो उनने बोला पावती की ज़रूरत नहीं है, आगे नंबर दे दो अपना, गाड़ी का नंबर दे दो और मोबाइल नंबर दे दो, उनको मालूम पड़ जाएगा। पर मैंने बोला नहीं सर अभी रिस्की बहुत है, आगे जाके फिर मेरे से 2500 मांग लिया तो मैं क्या करूँगा। हट साला, आज ये ट्रिप में ज़्यादा ही एडवेंचर हो रहा है भाई। 2 बार बाइक बंद पड़ गई, फ़ाइन लग गया मेरे को, बट ठीक है, थैंक यू भाई, तूने मेरा 20,000 का फ़ाइन बचा के मेरे को 2500 में निपटा दिया। क्या चल रहा है तेरा यार? फक, क्या पका रहा है यार। क्या हाल है हरिया जी? ओके तो मैं मेरठ के आसपास हूँ, किधर मेरठ के बाहर मोदीपुर, एक्चुअली टू बी मोर एग्जैक्ट मोदीपुर। और यहाँ से 4.5 किलोमीटर की दूरी पे एक रॉयल एनफील्ड का सर्विस सेंटर दिख रहा है, तो आई रादर जस्ट शो इट। होपफुली वो फटफट काम करके दे दे, वरना अपने को रुकना पड़ेगा इधर आजू बाजू में। शिवा राइडर्स सेल्स एंड सर्विस। तो जी सर्विस भी होता है, सर्विस भी होता है। मेरे को बाइक दिखानी थी बट महाराष्ट्र की है। किनको पूछना है? हाय हाय, तक्ष नाम है मेरा, हिमालयन 411 है, और वो बार बार बंद पड़ रही है एंड आई डोंट नो और कहाँ जाऊँ मैं। सर एक्चुअली ना टेक्नीशियन यार शोरूम क्लोज रहता है, बस सेल्स खुला हुआ है। अरे बाप रे, और कोई भी किधर भी मैं आर से फ़ोन करूँगा मेरे को 7 घंटा वेट करना पड़ेगा। नज़दीकी शोरूम है हमारे पास रिठानी में, वो वहाँ से आपको दौड़ लगेगा। कहाँ पे है शोरूम? रिठानी थोड़ा सा दूर है। कितना दूर पड़ेगा मेरे को? मेरे दिमाग से कम्प्लीटली निकल गया था कि आज दशहरा है। सर्विस सेंटर में कोई भी नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है, खाली सेल्स टीम है। सेल्स टीम को आता नहीं ठीक करने को, बट ऑब्वियसली तो नाउ दी ओनली ऑप्शन आई हैव, 2 ऑप्शंस आई हैव। एक तो धीरे धीरे करके यमुना एक्सप्रेस में पहुंच जाऊं, वहाँ पे आई एम श्योर मेरा कोई ना कोई मैकेनिक किधर ना किधर मिल ही जाएगा, या तो फिर मेरठ सिटी में घुसूँ। और मेरठ सिटी में घुसने का इशू नहीं है, मेरठ सिटी में प्रॉब्लम ये है कि यह हाईवे पे बंद हो रही है, तो ठीक है रुकने की जगह है, शेड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक बार मैं मेरठ सिटी के अंदर घुस गया और वहाँ बंद पड़ गई तो बाबा देन इट्स अ बिग प्रॉब्लम।
इतनी ट्रैफिक में गर्मी में कहाँ मैं इसको हाथी को धक्का मारते लेके जाऊँगा। लोग तू क्यों कर रही है मेरे साथ ये? तेरे को क्या हो गया मेरे को बता। तो तेरे को इशू क्या है? बैटरी का प्रॉब्लम है, एयर फिल्टर का प्रॉब्लम है, पेट्रोल में कुछ कचरा घुस गया है, मोटर नहीं चल रहा, कुछ तो बता दे मेरे को। आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी हैव AI apps that connect your phone to your motorcycle and it can at least tell you the diagnostics in real time, ताकि even people who are not mechanical can at least have an idea of what the fuck is happening. So I've decided to now keep going slowly towards Yamuna Expressway. I have 134 kilometers to Yamuna Expressway. Fingers crossed. क्या करूँ, ऑप्शन ही नहीं है कोई मेरे पास। ये चौथी बार बंद पड़ी है आज सुबह से। I must have covered around 200 and 250 kilometers and this is the fourth time it has stopped in 250 kilometers. अभी मेरे को लोगों की बातें मेरे दिमाग में घूम रही है कि भाई इससे अच्छा KTM एडवेंचर ले लेता इससे अच्छा V-Storm ले लेता। वैसे मैं बाइक इज़ pretty well maintained. I should get a good price for it if I sell it. But मेरे को बेचना नहीं है तेरे को डोरा, तेरे को मैं ठीक करके रहेगा, बेचूंगा तो नहीं तेरे को। इसको ब्रेक डाउन नंबर 5। चाचा इधर कोई मैकेनिक मिलेगा मेरे को? किधर बाइक ऐसा मोटरसाइकिल का मैकेनिक है किधर? कितनी दूरी पे? ये चौक पे? अच्छा, okay, thank you. I started putting up Instagram stories and I started calling up RSA and I was hoping that somebody would help me, but unfortunately मेरे subscribers उतने हैं नहीं, so there was nobody in UP at the time, and so I ultimately got through RSA. Now the problem was that the Ghaziabad service center was 33 kilometers away. There was a showroom 5 kilometers away from where I was stranded, but that was just क्या बोलते हैं उसको? It's called a मतलब वाह जस्ट शोरूम, वो सर्विस सेंटर नहीं है। उसने कुछ तो नाम बोला था, डिस्प्ले समथिंग ऐसा कुछ नाम बोला था उसने। इसे यहाँ पे खाली क्लीनिंग का काम होता है एंड सेलिंग का काम होता है। यहाँ पे सर्विस सेंटर नहीं है, गाजियाबाद जाना पड़ेगा आपको 30-35 किलोमीटर्स अवे। सो आई वाज लाइक कूल, लेट्स कॉल अप RSA। सो आई कॉल्ड अप RSA को आने को लगा 1.5-2 घंटे के आसपास, बट ठीक है अल्टीमेटली दे एंडेड अप अराइविंग। वी लोडेड द बाइक ऑनटू द टेम्पो एंड वी लेफ्ट फॉर गाजियाबाद। फिर थूक रहा हूँ यार, कुछ करना पड़ेगा मेरे को इसका। जवान के लिए ब्रेसेस नहीं आते ना। मैं जा रही हूँ। गाजियाबाद पहुंचा तो लाइक आई सेड दशहरा था, बट आई डिड नॉट नो कि दे वर शटिंग अर्ली फॉर दशहरा। एज माय लक वुड हैव इट 5:30 बजे के आसपास वो लोग दे वर शटिंग शॉप एंड उसने बोला कि भाई अभी तो तेरे को गाड़ी छोड़नी पड़ेगी, आप कल आ जाइए, घर जाइए। मैं बोला घर क्या भाई, MH पासिंग है भाई, महाराष्ट्र बाइक, देयर इज नो घर भर। माई घर इधर से 1600 किलोमीटर दूर है, 1600 किलोमीटर आई हैड टू गो ऑन ए ब्रोकन डाउन इंजन। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई वॉज नॉट पैनिकिंग एक्चुअली, दैट्स द बेस्ट पार्ट। आई डिड नॉट पैनिक व्हाटसोएवर। मैं खाली एक बार दिल्ली में पैनिक हुआ था जब फर्स्ट टाइम बाइक ब्रेक डाउन हो गई थी, तो उसके बाद फिगर इट आउट, थोड़ा सा मैं रिदम में आ गया। देन आई वाज लाइक ठीक है, वो कूल डाउन होने के बाद चालू हो जाती है। मेरा आ रहा है 10 मिनट में आ रहा है। चले आप बता दीजिए कहाँ जाना है। मैं फाइनली लग चुका हूँ यमुना एक्सप्रेसवे पे और मेरे ख्याल से ये 160 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है एंड आई एम सो हैप्पी यहाँ पे बाइक चला रहे भाई, सो हैप्पी। मैं चुपचाप इज्जत से अपना ये लेफ़्ट शोल्डर पकड़ के एक कांस्टेंट 70-80 मेंटेन कर रहा हूँ। आई एम नॉट एक्सीडिंग 80। डू नॉट वांट टू जिंक्स एनीथिंग, डू नॉट वांट टू रिस्क। प्लीज़ अपना भी ध्यान रख, मेरा भी ध्यान रख, मेरा ध्यान रख ताकि मैं तेरा ध्यान रख। बस हो गया, ये राइड में बहुत एडवेंचर हो चुका है, बहुत एडवेंचर हो चुका है ये राइड में। उत्तराखंड से सुबह को निकलने के टाइम पे भी थोड़ा सा फुटेज मेरे गोप्रो में से निकल चुका है। एक यूट्यूबर को फुटेज की अहमियत क्या होती है वो एक दूसरा यूट्यूबर ही समझ सकता है भाई।
गुड मॉर्निंग यूट्यूब। आज कौन सा दिन है मेरे को नहीं मालूम। आई हैव लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम। होटल सौरभ पार्क इन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर स्टे। It is 6 o'clock in the morning. I am leaving from Agra and today's journey is going to be till Indore. बस घर पहुंचने में अब 2 दिन बाकी है। आज रात को इंदौर और परसों होपफुली मैं घर पहुंच जाऊंगा। इसका फिर चालू हो गया यार। छः 150 किलोमीटर बाकी थे। अभी अपन जब रुके हैं 417 किलोमीटर बाकी है। अपना अपना मैथ्स कर लो क्योंकि मेरा मैथ्स बहुत ख़राब है, तुम लोग ऑलरेडी मालूम है। मैं इसी डर से नहीं रुका ताकि ये अगर बंद हो और फिर चालू ना हो और मैं किसी गांव में फिर अटक जाऊं। देख तेरे को बंद कर रहा हूं मैं, तू चालू हो जा। बंद किया है तेरे को मैंने, याद रखना। तेरे को भी रेस्ट की ज़रूरत है, मेरे को भी रेस्ट की ज़रूरत है भाई। मेरा पिछवाड़ा और मेरा हाथ दोनों वाइब्रेट कर रहे हैं। ओह कितना खींचा है अपन ने? आई थिंक मोर देन 200 किलोमीटर्स अपने को जाना है और 417 किलोमीटर। गुड जॉब कैप्टन। तेरे को गुड जॉब बोलता मैं, लेकिन तू फ्रस्ट्रेट करा रही है मेरे को अभी। रॉयल एनफील्ड, मेरे को एक क्वेश्चन है आप लोग से। आप लोग के पास दुनिया भर का पैसा है, यू ऑल गो एंड हैव एन इवेंट कॉल मोटोवर्स। ऑल दैट मनी यू कैन रिमूव सम ऑफ दैट मनी and put it in fucking R&D and figure out your fuel pump nonsense or what? और जब तेरे को मालूम है कि हिमालयन 411 में इश्यूज है तो तूने ये तो क्या सोच के तूने नया बाइक लॉन्च किया है? पहले ये तो सुधार। रिकॉल तो कुछ किया नहीं। इरिटेट हो रहा है मेरे को अभी। ये देख चालू होती है फिर बंद हो जाती है, फिर चालू होती है फिर बंद हो जाती है। अभी तो अच्छे से चल के ही ना उधर से वो चालू हो जाती है, थोड़ा सा 2-3 दिन से परेशान कर रही है। दिस इज इंदौर टू मुंबई, लास्ट स्ट्रेच बैक होम। मैं हूँ एक प्राचीन श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर के सामने और ये देखो आई हैव लॉस्ट काउंट टू बी ऑनेस्ट। मेरे को याद भी नहीं अभी कितनी बारी बंद हो चुकी है ये पूरे ट्रिप। अब हाउ एम आई सपोज टू डू माई फ्यूचर टूर्स लाइक दिस? मैं ऐसे तो नहीं लेके आ सकता इसको। हैज टू बी सम परमानेंट सोल्यूशन। सब चल रहा है, करंट पकड़ रहा है, इग्निशन हो रहा है, बस कट ऑफ होती है फिर चालू नहीं होती है। पर इतनी तो हीट भी नहीं हुई है। अगर ओवर हीटिंग हो रहा है इतनी तो हीट भी नहीं हो रही। फकिंग सिक एंड टायर्ड ऑफ रॉयल एनफील्ड। द हिमालयन इज सच अ ब्रिलियंट बाइक, सच अ ग्रेट बाइक. It has been let down by asshole engineers and asshole management who thought that it's better to come up with a new Himalayan rather than fix the old one first. चल भाई, मैं क्या ये मुंबई तक जाऊंगा क्या ऐसे रोलिंग डाउन हिल? क्या बकवास है। जो सर्विस सेंटर गया था, why can't you just fucking figure it out? I left Agra and started going towards Indore. Now Agra to Indore also I had a lot of breakdown. Once I reached Indore, I took a hotel room, stayed for the night. The next day morning I started my journey all the way back to Mumbai. And नासिक में जाके मेरी बाइक फुस, I mean अभी तो चालू भी नहीं। पहले लग रहा था कि ओवरहीटिंग की वजह से हो रहा है या मेरा रिले मैल फंक्शन हो रहा है। This time I was like अभी मेरे पास ना कोई एक्सक्यूज है ना मेरे पास कोई रीजन है, so I don't know what's happening. Called up my dad, I spoke to him and he said show it to a service center over there. So I was like ठीक है, I'll do that. So Nashik में I stopped a night again. I took a room in Nashik. Next day morning I got up, started the bike perfectly fine, no issue whatsoever, no weird noises, no cutting off, nothing. So Nashik से फिर मुंबई आ गया मैं one shot में obviously. बट वो नासिक से मुंबई जो मैं आ रहा था फिर मैं किधर रुका नहीं, मैं नासिक टू मुंबई वन शॉट गया, विच इज नॉट अ वेरी बिग डिस्टेंस. इट्स ना गिवन एवरीथिंग. थैंक्स टू गाजियाबाद सर्विस सेंटर फॉर रियली हेल्पिंग मी आउट, दे वर वेरी स्वीट. बट मेरे को एक चीज समझ नहीं आती, जब तुम्हारा मैकेनिक बाइक खोल रहा है तो तेरा एक ही काम है कि कल्प्रिट को ढूंढ के निकालो, और अगर उसको रिप्लेस करना है तो उसको रिप्लेस कर. इफ मनी इज द इश्यू then you tell me about, I will pay you for that. But why the
would you tell me that your relays are fine when ultimately it was the relay only that was causing the issue? नहीं सर, फ्यूल पंप में कचरा फंस गया होगा, पेट्रोल में कुछ गंदगी अटक गई होगी, पेट्रोल टैंकी में कचरा फंस गया होगा, तुम्हारा एयर फिल्टर में ज्यादा कचरा फंस गया होगा। दुनिया भर का फलाना ढिमकाना बातें तू मेरे से कर सकता है, लेकिन जो कल्प्रिट है, मेन कल्प्रिट, जो मैंने उसको ऑलरेडी बोल दिया था, क्योंकि फर्स्ट डे से आई हैड एन इंट्यूशन कि इट इज माय फ्यूल पंप दैट इज नॉट वर्किंग, बट नो रिप्लेसमेंट, नो नथिंग, ही ओनली क्लेम्ड जितना मेरा बिल फटा है अभी उतने में मैं एक और राइड कर लूं पार्ट। द प्रॉब्लम आई हैव इज नॉट विद द हिमालयन, आई एम इनलॉयल, आई डू नॉट बिलीव इन अबैंडनिंग अ रिलेशनशिप और अ सिंकिंग शिप, ओके, बट इफ रॉयल एनफील्ड स्टार्ट्स अबैंडनिंग इट्स कस्टमर्स दैट इट हैज प्रॉमिस्ड टू हेल्प, देन व्हाट्स द पॉइंट? तो जो तुम्हें हेट मिल रहा है सोशल मीडिया पे वो करेक्ट है, या तो तुम प्रॉमिस मत करो, या तो अगर तुम प्रॉमिस कर रहे हो तो फिर उस पे खड़े उतरो। हर इंसान को पैदाइशी एक रीढ़ की हड्डी मिलती है, अगर तुम्हें वो रीढ़ की हड्डी पे खड़े होने नहीं आ तो बेचते तेरी रीढ़ की हड्डी, किसी ना किसी को तो काम आएगी। द इशू इज व्हेन यू स्टार्ट कंप्लेनिंग अबाउट दीस थिंग्स, नो, द कंपनी विल ब्लेम यू। मेजरली ये देश कोई भी सिचुएशन में, कोई भी बिजनेस में, कोई भी पॉलिटिक्स में, रिलीजन में, किधर भी, सेफ्टी हो, क्राइम हो, कुछ भी हो, धंधा पानी कुछ भी हो, ये देश मेजरली विक्टिम ब्लेमिंग पे काम करते। तूने कुछ गलती, तूने कुछ चेंज किया, तेरे वजह से कुछ, साले जब तुम्हारे डिजाइन में फ्लॉ है तो उसमें मैं क्या कर सकता, और अगर फ्लॉ है तो देन कैन ओन अप टू इट, और जब तुम्हारे पास कोई आ रहा है तो उसको रिप्लेस करके दो। आई हैव बीन हाईली डिसअपॉइंटेड एंड सी दिस कमिंग फ्रॉम अ गाय हु हैज बीन राइडिंग रॉयल एनफील्ड्स ऑल हिज लाइफ। मैंने अपनी डैड की इलेक्ट्रा पे सीखा है, उसके बाद मैं खुद की क्लासिक चलाई है, अब मैं खुद की हिमालयन चला, मैंने अपनी पूरी लाइफ रॉयल एनफील्ड को दी। बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कंपनी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसका तो धंधा है ना, वो तो प्रोडक्ट बना के बेचो, ये तो मैं बहुत पहले समझ गया। तो ये जो ऑनलाइन अपन ज्यादा देखते हैं ना कि KTM वाले लॉयलिस्ट, रॉयल एनफील्ड वाले लॉयलिस्ट, बजाज वाले लॉयलिस्ट, ठीक है तुम लॉयल हो, अपनी मशीन के लिए लॉयल हो, तुम कंपनी के लिए जब लॉयल रहते हो ना तो मेरे को बहुत छुट्टागिरी लगता है। कंपनी के लिए कौन झगड़ रहा है? उसका CEO अपने प्राइवेट जेट में घूम रहा है स्विट्जरलैंड, और तू गोवंडी में बैठ के उसके लिए झगड़ा कर रहा है सोशल मीडिया पे। कोई सेंस बनता है क्या ये बात? ये आजकल का बाइकिंग कल्चर देख के मेरे को बहुत अंदर से खुजली हो रही है कि मैं दूसरा चैनल चालू करूं जहां पे मैं खाली मोटो क्रिएटर्स को रोस्ट करूं, पर ठीक है फिर मैं भी एक मोटो क्रिएटर हूं तो काफी हिपोक्रिटिकल हो जाएगा। शी स्ट्रगल्ड अ लॉट ऑन दिस राइड, शी वाज ब्रेकिंग डाउन एवरी 50। मैं नहीं समझा पाऊं, मैंने इसीलिए ये व्लॉग डालने में थोड़ा टाइम लगाया है, क्योंकि मैं 4-5 दिन से खाली चौक कर रहा हूं कि हाउ डू आई वांट टू टेल दिस स्टोरी। अल्टीमेटली टुडे मॉर्निंग आई डिसाइडेड ये स्टोरी बोलने का कोई फॉर्मेट ही नहीं है, मेरे को नहीं बनाने का, सिनेमैटिक वीडियो नहीं बनाना है स्टोरी टेलिंग बोलने के लिए। आई वांट टू एक्सप्रेस माय फीलिंग्स इन अ वेरी रॉ मैनर, दैट इज व्हाई आई मेड इट लाइक दिस। नो मैटर व्हाट हैपेंड ऑन दिस राइड, 2 थिंग्स दैट आई विल नेवर फॉरगेट। 1, आई मेट सम ऑफ द स्वीटेस्ट पीपल, मोस्ट हेल्पफुल पीपल that I have never imagined myself meeting. And second, that Dora never gave up on me. She was cutting off every 50 kilometers, 20-30 kilometers she was cutting off. पर उसको मैं थोड़ा सा स्पेस दे रहा था and then she ultimately got me home. जैसे भी हो, भले मैं 3-4 दिन मेरा राइड डिले हुआ है, भले मेरा बजट 2x ओवरशूट हुआ है, 2x मैं नहीं बताऊंगा बजट, क्योंकि मेरी माँ वीडियो देखती है, गाली देगी मेरे को, वो मेरे को उसने घर पहुंचा दी, एंड दैट इज द मेन थिंग। एवरीथिंग एल्स कैन बी ओवरलुक्ड बिकॉज फ्रॉम ऑल दीज ऑब्स्टिकल्स I have come out stronger and my bike has come out stronger. Now she and I have another level of understanding that did not exist before this ride. और मैं आधा पारसी, मैं अपनी गाड़ी और बाइक पीछे नहीं छोड़। I am highly obsessive about. मेरे को बहुत DMs आए जब मैं स्टोरीज डाल रहा था कि bro it's time to courier the bike home. Put it in the train. तू आ जा ट्रेन से, फ्लाइट से आ जा, your safety is most important, your safety is most important. I understand and thank you for those DMs. पर मेरे को एक बात कहनी है कि I am such a guy that no matter what the problems are, अगर मैं ना खुश भी हूँ, I will stick it out. मैं भागूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं। ये मैं सिर्फ बाइक्स की बात नहीं कर रहा इशारा काफी है कुछ लोगों के लिए। एक्सट्रीमली मतलब मैं अपने दुश्मन के साथ भी ये नहीं करता, और एज अ क्रिएटर मेरा काम ये है कि मैं अपने सब दुख दर्द साइड में रखूं, और जब मैं कैप्टन के कैरेक्टर में आऊं तब मैं कैप्टन के कैरेक्टर में आऊं। देयर इज नो 2 ways अबाउट इट। अभी मैं यहाँ बैठ के अपना दुखड़ा रो नहीं सकता, आधे लोगों को इंटरेस्ट नहीं है और बाकी के आधे लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, विच इज फाइन। दैट इज व्हाई आई गिव चीटिंग एज एन एग्जाम्पल। नाउ जिसको समझना है वो समझ सकता है। एनीवे, शी गॉट मी होम and that's what matters. And no matter what people say about Royal Enfield, I know they have gone to shit, their management has gone to shit, their service had always gone to shit, now it's just become. But one thing you have to agree about Royal Enfield is that no matter what issues the engine will give you, she will get you home. And like I said, I'm emphasizing again, that is what matters the most. So yeah, for my regular watchers, I'm sorry I was gayab for such a long time. I hope to be back soon. आजकल मेरे को ऐसा मतलब I'm not able to find any
creative inspiration for quite some time. But I think मैंने एक post डाली थी Instagram पे काफी time पहले. I know you're scared, I am too, but do it anyway. I know you're lost, I am too, but do it anyway. I know you want to give up, I do too, but do it anyway. Be a man, cry alone in your bath, but come out and do it anyway.